Hello students, today we will complete our lesson 10, The Beggar of Moments book, page number 65 from the starting. Now, every first day of every month, Lushkov came to advocate's house and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. When Lushkov came to advocate's house, every time he was found work like to lift a snow with a tool, shovel होता है lift with a tool, and put the woodshed in order and beat and dust. जैसे कि जो गद्दे होते हैं रग्स एंड मेट्रेसिस की जो डस्ट है उसको झाड़ता था, मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए काम वहाँ ढूंढ कर रखा जाता था. एवरी टाइम ही गॉट 20 to 40 kopecks फ्रॉम द कॉपेक्स. क्या होते हैं आपके रशियन कॉइन्स. रशियन कॉइन्स जो है उसको मिलते थे कहाँ से, एडवोकेट से. इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, और ओल्ड ट्राउजर्स भी उसको दिए गए. वन सरजी moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. Once the advocate had shifted his house, so then also he hired Lushkov to help in the packing and carrying the furniture. Hauling होता है carrying the furniture. This time the waif क्या होता है, helpless and homeless person, was sober, gloomy and silent. Sober, simple, gloomy, sad, silent, बिल्कुल quiet. He hardly touched the furniture. Means he was hired for carrying the furniture from one house to another house, but he didn't touch even the single furniture, and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. वैगन्स क्या होती हैं, जो गाड़ी होती, कैरेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए जो गाड़ियां होती हैं उसको वैगन्स बोलते हैं. कि सिर्फ वो वैगन्स के पीछे चलता रहा. इवन उसने मतलब अपने शरीर के किसी भी हिस्से से इस तरीके का प्रिटेंस, बहाना भी नहीं बनाया कि वो कुछ काम कर रहा है, मतलब उसने कुछ काम नहीं किया. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him. He only shivered. Shivered क्या होता है, कांप रहा था. He was shivering in the cold and became embarrassed, and he was feeling embarrassed also when the carters means who were driving the wagons, जो गाड़ी चला रहे थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इस पर्सन को तो हायर किया गया है सामान उठाने के लिए, ले जाने के लिए, पैकिंग के लिए, बट इसने तो एक भी काम नहीं किया. ये उसका मजाक उड़ा रहे थे. तब वो क्या फील कर रहा था, एम्बेरेस. फॉर हिज आइडलनेस मीन्स कुछ भी काम नहीं किया, बेकार. फीबलनेस होता है वीकनेस. एंड हिज टैटर्ड मीन्स उसके फटे पुराने कपड़ों के कारण. फैंसी ओवरकोट, जो उसका ओवरकोट था दैट वाज लुकिंग वेरी फैंसी. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजी सेंट फॉर हिम. जब खत्म हो गया तो जो ले जाने का सामान, तो सरजी सेंट फॉर हिम. वेल आई एम हैप्पी विद माई वर्ड्स. सरजी ने उसको बुलाया और कहा कि मैं खुश हूँ. माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे शब्दों का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ा. He said, handling him a ruble, and he gave him a ruble. Who gave? Advocate gave ruble to Lushkov. Here is for your pains. I see you are sober, have no objection to work. What is your name? अब यहाँ पर वो पूछता है कि here is for your pains. Pains मतलब he was very much weak from his physical strength and he didn't have any stamina to do any work, but he was trying. He came for finding some work. So the जो एडवोकेट है उन्होंने क्या बोला उसको, उनका नाम पूछा, लश्कोफ. वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट? आई कैन. देन टेक दिस लेटर. जब
जो एडवोकेट हैं वो एक लेटर देते हैं लश्कोव को, बोलते हैं कि ये मेरे फ्रेंड के पास आप कल लेकर चले जाना, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें वहाँ कुछ काम दे दिया जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू गुड बाय, और कि हार्ड वर्क करो, ड्रिंकिंग नहीं करो, और जो मैंने तुम्हें कहा है उसको फॉलो करो। Pleased at having put a man on the right path means he was feeling, Sarji was feeling very much happy as he had diverted a drunkard person to a right path. Sarji tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. और उसे हैंडशेक भी किया जब वो जा रहा है, और उसके शोल्डर्स पर पैट थपथपाया उसको। Lashkov took the letter, and from that day forth came no more to the yard for come. लश्कोफ ने भी वो लेटर ले लिया, और उस दिन के बाद वो कभी भी उनके घर काम मांगने के लिए नहीं आया। 2 years passed by. Then one evening, as Sarji was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. वहाँ पर जो एडवोकेट है वो एक लिटिल पर्सन को नोटिस करते हैं उसके बिसाइड में, और जो कोट कॉलर, जिनकी कर्ली फर वाला कोट कॉलर है, एंड वोर्न आ सील स्किन कैप, और कैप जो पहन रखी है वो सील की स्किन की पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। जो लिटिल पर्सन है, लिटिल हाइट पर्सन है, उसने टिकट सेलर को, टिमिडली क्या होता है, टिमिडली होता है डर 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 के, ठीक है, फियरफुली। आज द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी, गैलरी की सीट के लिए बोलते हैं, और उसको किस में पे करते हैं, कॉपर के कॉइन्स में। देन व्हेन सरजी सॉ दैट पर्सन, who person was that, that person was Lashkov. Then he said, Lashkov, is that you? Cried Sarji, recognizing in the little man his former wood chopper. अब उस लिटिल मैन कौन है, वही वुड चॉपर है जो एडवोकेट के घर पे वो बैगर था और उसने उसको काम दिया था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कि फिर उसके बारे में पूछा कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक चल रहा है। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड पेड 35 रूबल्स आ मंथ, कि अब मैं क्या हूँ, एक नोटरी, एक पोस्ट होती है जिसको आप लॉयर भी कह सकते हैं, एंड पेड 35 रूबल्स आ मंथ, और मुझे कितनी सैलरी मिलती है एक महीने में, 35 रूबल्स। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर यू सेक। व्हेन एडवोकेट heard this thing from the Lashkov, then he thanked God. Advocate was feeling delighted for knowing the position of Lashkov. I am very glad, Lashkov, you see, you are my godson. Godson क्या होता है, धर्मपुत्र, कि तुम मेरे धर्मपुत्र हो। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, और मैंने तुम्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर धकेला है या पहुंचाया है। यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग, रोस्टिंग मीन्स रेब्यूकिंग, स्कोल्डिंग। आई गेव यू आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितनी डांट लगाई थी, कितना भला बुरा कहा था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, अब वो याद है कि तुमने मुझे क्या कहा था वहाँ, तो जो है लश्कोफ वो भी उसका थैंकफुल है बहुत ज़्यादा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू टू सेड लश्कोफ, इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ फिट, कि फिर जो लश्कोप है वो एडवोकेट सर जी के लिए बहुत थैंकफुल हैं, वो कहते हैं कि तुमने मुझे सही पाथ पर लेकर आए, नहीं तो आज भी मैं कभी अपने आप को स्कूल टीचर और कभी स्टूडेंट कहता मिलता, बैगिंग कर रहा होता, और तुमने मुझे एक खड्डे से बाहर निकाला है। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, डीड्स होते हैं वर्क। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल भी थैंक, और टू योर कुक, कि स्पेशली जो मैं है तुम्हारा भी थैंकफुल हूँ। स्पेशली किसका थैंकफुल है लश्कोफ, उसकी जो कुक ओल्गा थी उसके कारण। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, यू स्पोक फाइनली
then I shall be indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me. वो कहते हैं कि मैं मरते दम तक तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा, बट जो सीरियसली जो सच्चाई बात है वो सच में किसका थैंकफुल है? ओल्गा का. हाउ इज दैट? नाउ द सरजी वॉज आस्किंग हाउ इज दैट. When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep, oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, there will be a none in the world to come, you drunken. You will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. Strain hota hai style. In that style, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, means here the Lashkov was reminding the situation in his house. He said that when he came to Sarji's house at that time when he was chopping wood, then Olga sit at the opposite side of the Lashkov and scolding him very much. You are drunken, you don't have any happiness in this world for you, you can't burn the chop the wood. And she carried on in that style. I can't tell you कि उसने मेरे लिए कितनी माइजरी सफ़र की है, कितना मेरे लिए दुख झेला है, मेरे लिए बैठकर वो आंसू बहाती थी. एंड चीफ थिंग वॉज दैट शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी और आपको आकर कहती थी कि लश्कोफ ने लकड़ियाँ काट ली. डू यू नो सर, आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, शी डिड इट ऑल. वाई दिस saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I can't explain. कि उसने मुझे किस प्रकार से बचाया है, कैसे मुझे बदल दिया, मैंने उसके कारण से शराब पीना भी छोड़ दिया. आई नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, कि उसके कहने के कारण और उसके अच्छे कर्मों के कारण एक चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, कि मेरे हार्ट में भी एक चेंज आया, मेरे अंदर भी एक चेंज आया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, कि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, कि अब जाने का समय हो गया है. देयर गोज द बेल, बेल बज चुकी है. लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. लश्कोफ झुककर उनको नमस्कार करते हैं और गैलरी में चले जाते हैं थिएटर की. दिस इज your chapter 10 students. Now you have to read thoroughly from the text and listen the video very carefully.